Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel for the next video of our NEET series. So today we are going to discuss the NEET 2021 paper. फिर से once again as per the demand of students ये पेपर भी इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लैंग्वेज में होने वाला है. आप लोग बोलेंगे तो और लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे. So that was the joke apart. So NEET 2021 हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा पेपर था, आसान पेपर था. ये ऐसा पेपर है, इस पेपर में 36 क्वेश्चंस ही मेंशन्ड हैं इसमें. तो 36 में यू कुड हैव सॉल्व्ड इजीली 32 टू 33 क्वेश्चंस, जो कि टोटली कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड हैं. 32 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो केमिस्ट्री के 36 में से, दैट मींस यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट. आपने बहुत कुछ सॉल्व कर दिया है. आपका जो स्कोर है दैट इज 650 प्लस, क्योंकि केमिस्ट्री plays a vital role in this NEET examination. So let us start the paper. ज़्यादा बात नहीं करते. So first question is, which of the following is an incorrect statement? Nuclear pores act as passages for proteins RNA molecules. Oh, I guess this is biology. Yes, let us start with chemistry. Sorry students. Yes, this is the chemistry paper. The incorrect statement among the following is, actinides are highly reactive metals, especially when finely divided. This is a true statement. We have to find the false statement. Actinide contraction is greater for elements to element than lanthanide contraction. Okay, it is also true. That is true. Most of the trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state. That means this is a wrong statement. They are not colorless, they are colored. If you have seen, I have given you a list of colored compounds from the lanthanides which have oxidation state +3 and they are not colored. That means this is my answer. I will go with answer number C. So let us check this answer. One second. Yes. So we started with the right answer. So my first answer is a correct answer. So moving to the next question, question number 2. Okay, it is a statement based question. तो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. ये बात गलत है. नार्कोटिक नहीं होते, ये दोनों नॉन नार्कोटिक होते हैं. ओके, दिस इज एक्चुअली अ डिलीटेड पोर्शन, जो कि क्योंकि 2021 में डिलीटेड नहीं था इसलिए हम सॉल्व करेंगे. मॉर्फिन, दैट मींस इट इज फॉल्स. मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक. ये नॉन नार्कोटिक नहीं होते, ये नार्कोटिक होते हैं. दैट मींस इट इज अगेन फॉल्स. दैट मींस स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों के दोनों क्या हैं? false statements हैं. Statement 1 and 2 are false. Let us check answer number C. So we got this answer right. ये भी हमारा आंसर सही है. तो ट्रिक्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे भाई, दोनों के दोनों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे. So moving to the next question, question number 3. Yes, this is the question number 3. Again statement based. Acidic strength increases in the order of HF, HCl, HBr, HI. This is a true statement. ये सही स्टेटमेंट है. इट इज ट्रू. Why? Because हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है और ये टूट रहा है. एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स FCl, Br इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बॉन्ड. वही बात जो मैंने आपको बताई, एग्जैक्टली वही बात है. मतलब ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. तो हम क्या करते हैं, लेट अस चूज द आंसर इन विच इट इज सेइंग दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. So statement 1 and both are true. Let us check this answer. Yes, we have got this answer right. Moving to next question, question number 4. Which one among the following is correct option for the right relationship between Cp and Cv? Cp minus Cv is equal to R. तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. Cp minus Cv is equal to R. ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का था, उससे ज्यादा नहीं. 10 सेकंड में ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता था. अगर आपने थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. तो इतना सा कुछ तामझाम देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको याद होनी चाहिए कुछ एक चीजें. BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. सही है. हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम. अब आपको पता है कि अगर बोरोन जो है BF3, बोरोन कम्स इन ग्रुप 13. ग्रुप 13 के मोस्ट कॉमन जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2. जब डाइमर में जाता है या पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनते हैं तब जाके वो बनता है sp3. तो sp2 है और BF3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. मतलब आई हैव दिस आंसर नंबर D. Let us check this answer number D. So we have got this answer right answer. Moving to the next question.
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, देखो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, 11th ग्रेड हाइड्रोकार्बन से आया है। अब क्योंकि ये वाला जो है वो आपको देगा प्लस आई इफेक्ट, तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। दैट मीन्स आपका जो Br है यहां अटैच होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बोकेटायन है वो एलाइलिक बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, रिएजेंट अगर देखोगे तो ये पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, C6H5COO डबल बॉन्ड O एंड C6H5, तो इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के फॉर्म प्रेजेंस में लगता है एंटी मार्कोनिकोव। तो विदाउट वॉचिंग दिस रिएजेंट आपको एडिशन नहीं करनी है, दैट मीन्स ये सब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं देखना, जस्ट आपको क्या देखना, एंटी मार्कोनिकोव। दैट मीन्स ब्रोमीन यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये देगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, सो इट मस्ट बी माई राइट आंसर। Let us check this answer. Yes, A is my right answer. Okay, so we have got this answer right. Moving to the next question. So it was a peroxide based question. The molar conductance of NaCl, HCl, CH3COO, Na at infinite dilution are this. The molar conductance of CH3COOH. By using these three components, आप CH3COOH कैसे बनाओगे? अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, तो मेरा ये और ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COO एंड H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं कि CH3COO Na प्लस HCl माइनस NaCl, तो CH3COO की वैल्यू है 91 प्लस 426.16 माइनस 126, तो 426 प्लस 91, 6 प्लस 1 7, 9 to 11 517 माइनस 126, तो अप्रोक्सीमेटली 390 आसपास, 390-91 के आसपास जो है इसका आंसर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 540 201 390, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। यस, डेफिनेटली सी विल बी माय राइट आंसर। तो कोलरोशिस लॉ लगा है, बेसिक कोलरोशिस लॉ लगा है, कोई एडवांस स्कीम इसमें अप्लाई नहीं हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है 1368। आपको निकालना है वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ और इसका रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी होता है 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू कितना है 1368 × 10⁻3। तो ये आपका बन जाएगा, और कैलकुलेटर लेके डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो कैलकुलेटर के मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 0.0 ही होगा, ये 3 डिवाइडेड बाय 1368, 0.002192 ओके। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो आपके पास चाइनीज ऑप्शन है, सारे के सारे 21921921 इसी फॉर्मेट में है, इनटू 10⁵ ओके। तो 3 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 5 बचेगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा सेटअप करूं तो ये बनेगा 219, ये बन जाएगा 2.00219 इंटू 10⁵5। मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, मतलब बी मेरा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जो मेरा आंसर है वो बी होना चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद। यहां बच्चों गलती मत कर जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 2193 के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। लेट अस सी, मैं पिक करूंगा 2193 हाँ देखा, राउंड ऑफ करके ही आंसर आएगा, बिकॉज आपको जो ऊपर वैल्यू है वो 1368 किलोहर्ट्ज गिवन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 9 है ये।
Which of the following reaction in the metal displacement reaction? Choose the right option. Okay, metal displacement reaction देखना कि metal displace कहाँ हो रहा है. यहाँ पे आपका आया PbPbNO, मतलब यहाँ पे एक ही मेटल है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है. K एक ही मेटल है, ऑप्शन नहीं है. Cr है, Al है, Cl है, Ar है, Cl है. ओके, ये हो सकता है. Fe है, हाइड्रोजन है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है. डेफिनेटली ऑप्शन क्या है? सी. भाई रिएक्शन भी देखने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू इवन चेक द रिएक्शन. आप सीधा ऑप्शन देखो कि मेटल डिस्प्लेसमेंट है, दैट मींस दो मेटल आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो देखो कौन से ऑप्शन में दो मेटल्स प्रेजेंट है. अगर वैसा है तो अब आपके सामने है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आया जहां पे दो मेटल्स डिस्प्लेस हुए, तो मैं आंखें बंद करके ऑप्शन टिक करूंगा सी, जो कि मेरा सही आंसर आया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 7, 6 और 7 है, कुछ 10 है. 10. The compound which shows metamerism is, metamerism कौन शो करता है? ये मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है. ओके, डेफिनेटली ये ईथर बनाएगा, सॉरी कीटोन बना सकता है, ईथर बना सकता है. ये भी आपका ईथर रहेगा, कार्बन कार्बन OCC. अब ये क्या लिख सकते हैं? मतलब ए है मेरा ऑप्शन, ये नहीं है. ये भी हो सकता है C, ये CH3C3H8, ये नहीं होगा. तीन कार्बन कभी भी आपको मेटामर देते ही नहीं है. आपको अगर ईथर है तो 4 कार्बन चाहिए, कीटोन है तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए, तब जाके वो मेटामरिज्म शो करता है. तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. मैं ए पिक करूंगा. तो ये बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आपको आनी चाहिए. नीट का पेपर इतना एडवांस नहीं आता, आपको बेसिक चीजें चेक करनी होती हैं, हाई लेवल नहीं सोचना है ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अब PCl5 है. PCl5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब A का हो गया 4, SF6 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल. डन. BF3 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर. ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि निकलेंगे तब आप डिराइव करोगे तो टाइम लगेगा, तो याद कर लोगे अच्छा है. तो A4B3D2, 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 नहीं ये नहीं है. A4B3D2 ये मेरा आंसर है, बाकी मुझे चेक ही नहीं करने. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको वो आंसर्स चेक नहीं करने हैं, आपको पहले ऑप्शंस चेक नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका आंसर सही आएगा. तो देखते हैं, मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ. तो ऑप्शन नंबर बी, देखा आंसर मेरा आ गया एकदम सही, करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. कहां है 12 नंबर? हाँ, identify the compounds which reacts with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. If you remember, ये dissolve in alkali जो प्राइमरी होती हैं वो हिंसबर्ग के साथ मिलके जो भी कंपाउंड देती हैं आपको, वो NaOH के साथ क्या होता है? डिसॉल्व होता है. दैट मीन्स हमें प्राइमरी अमाइन ढूंढना है. सेकेंडरी जो होता है वो डू नॉट डिसॉल्व, और टर्शरी जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब हमें देखनी है प्राइमरी अमाइन. अब भाई इससे आसान क्वेश्चन अगर आपको मिले तो मुझे भी बताना. ए हमारा आंसर नहीं है बिकॉज नाइट्रो आ गया यहाँ पे नाइट्रो मेंशन है. ये आपकी सेकेंडरी अमाइन है, ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट तो करेगा लेकिन वो डिसॉल्व नहीं देगा. देन सी प्राइमरी अमाइन है. डी भी चेक कर लेते हैं. हाँ, ये टर्शरी है, तो मतलब सी ही मेरा राइट आंसर है. चेक कर लेते हैं. यस, सी इज माई राइट आंसर. तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए एनसीईआरटी लेवल, ज्यादा हाई लेवल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको नीट के एग्जाम में. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आई गेस. जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये तीसरी बारी रिपीट हुआ है. एक बारी जेडब्ल्यू में आ चुका है, 2 बारी नीट में आ चुका है, मतलब दिस इज द 3rd टाइम टोटल. सो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दोनों का साइज छोटा हो जाता है. दैट मींस ये हमारा आंसर है. दिस इज टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. आपको मेमोरी बेस्ड इसको रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी आया है. So moving to the next question, ethylene diamine tetra acetate ion is. अब सबको पता है कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन जो होता है वो आपका फ्लेक्सीडेंटेट होता है. वो 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 भी बनाता है. तो ट्राइडेंटेट लाइगैंड विद 3 नाइट्रोजन डोनर, 3 नहीं होते. इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है. कार्बन कार्बन, इधर नाइट्रोजन, फिर इधर CH2 होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव. यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, कार्बन
डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। तो इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, 2 नाइट्रोजन है। इसने क्या बोला 3 नाइट्रोजन डोनर्स, मेरा आंसर नहीं है। हेक्साडेंटेट लाइगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 डोनर, मुझे आंसर मिल गया, बाकी चेक ही नहीं करने मुझे, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर लोन पेयर है, सेम यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। तो 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। तो आंसर नंबर, मैं बढ़ूंगा आगे बी के साथ, चेक कर लेते हैं अभी। यस, देखो हमें आंसर हमारा क्या मिल गया, एकदम सही मिला। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The major product formed in dehydrogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. The product is formed upon, आपको याद होगा सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल क्या देता है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये है 1 2 3 4 5। यहां पे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं तो मेरे पास क्या क्या बन सकता है, डीहाइड्रोएलोजिनेशन 1 2 3 4 5 ये बन सकता है, 1 2 3 4 5 ये बन सकता है। दिस इज माइनर, दिस इज मेजर। तो इसी की बात की गई है, मेजर प्रोडक्ट को ही सेट्ज़ेफ बोला जाता है। तो ये तो होगी आपका कॉन्सेप्ट। अगर मैं ट्रिक बेस्ड देखूं, अगर मैं ट्रिक के ऊपर बेस्ड चलूं, हकल रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये हकल रूल है? 4n+2 पाई सिस्टम है? नहीं है। सेट्ज़ेफ हो सकता है क्या? हंस रूल है? नहीं है। क्या हॉफमैन रूल है? नहीं है। भाई सेट्ज़ेफ ही है जो हमारे पास ऑप्शन में है। सो लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर बी। देखा, सही आंसर आया। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्स करके आप इसको लगा सकते हो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यही सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये 78% है, मतलब ये 22 है, डिवाइडेड बाय 12 है, डिवाइडेड बाय 1 है। तो 72 6 70 12 6 72, तो 6.5 है, 22 है, डिवाइडेड बाय 6.5 है, डिवाइडेड बाय 6.5 है, तो ये आ जाएगा 1। और 22 डिवाइडेड बाय 65, 220 डिवाइडेड बाय 65 बन जाएगा आपका 65, 6 3 जा 18, 190 समथिंग बनेगा। देन अगेन 3 समथिंग, 3.3 बन जाएगा ये मेरे हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 3 बन जाएगा। सो अगर कुछ है CH3, CH4, CH, CH2, CH, हाँ D मिल गया। यस, वी हैव गॉट D एज अवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं भाई। हाँ देखा, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज करोगे, मतलब बेसिक्स अप्लाई करोगे, तो आपका क्वेश्चन जो है आपके वो गलत नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन जो है वो सही मिलेंगे और आपकी स्पीड भी बनी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नीट इज मिक्सचर ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको दोनों चाहिए। बेसिक लेवल सोचो, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are this. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate, this is a salt. ये आपकी हो गई वीक बेस, ये आपका हो गया वीक एसिड। आपको निकालना है पीएच। तो पीएच फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या होता है? इट इज 7 + ½ pKa माइनस pKb। बस वैल्यूज पुट कर दो। सॉरी 3.27 नहीं आएगा, इट विल बी 4.77 माइनस 3.27, तो ये बन जाएगा 7 + 3.27 1.7, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1.50, तो 7.75 अगर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ ये है। डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, मैं डी के साथ जाऊंगा। सो थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये काम निपटाना है, करना है। देख लेते हैं। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल DEC-4N। तो ऐसा करो ना आप लोग, मिथाइल की स्ट्रक्चर, मिथाइल की पोजीशन बाद में देखेंगे, पहले 4N चेक कर लो। तो 1 2 3 4 हो सकता है, हो सकता है कि ये मेरा ऑप्शन हो। आगे बढ़े, ओके क्लियर करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी है बस हमें। तो 1 2 3, मतलब बी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन के ऊपर आ गई है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, मतलब सी भी मेरा आंसर नहीं है, मुझे 4 इन चाहिए। यहाँ पे इन की पोजीशन जो है वो 3 आ रही है। नेक्स्ट
ये तो भाई होगी नहीं, देखो कार्बन की कितनी लंबी चेन है, तो मतलब मुझे बिना कुछ और दिमाग लगाए सिर्फ आंसर नंबर ए ही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ए ही है। देखा, मैंने कुछ नहीं किया। तो दीज आर दी ट्रिक्स जो आपको अप्लाई करनी है। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड की और उसको ऑप्शन से मैच किया और हमें जो हमारा आंसर है वो मिल गया एकदम सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose, okay, in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. Right option for the decreasing order of osmotic pressure. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मास सेम है, मोल्स सेम नहीं है, ध्यान रखना। सबका I1 है बिकॉज सारे के सारे कोवेलेंट हैं, तो सबका I1 है, तो पाई इज इक्वल टू CRT which is equal to N upon V into RT. ओके, इसका मतलब हो गया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन V into RT। इसका मतलब पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका पाई कम आएगा। तो दैट मीन्स यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, ग्लूकोज का होता है 180, सुक्रोज का होता है 342। तो दैट मीन्स P2 P1 P3 है ऑप्शन, P2 P1 P3 P2 P1 P3 ये हो सकता है, P1 P2 P3 P2 P3 हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। लेट अस चेक। देखा, ऐसे आपके आंसर जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, आप सीधा निकालते। लेकिन टाइम आप कैसे बचाओगे? तो दीज आर द ट्रिक्स फॉर सेविंग योर टाइम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी। अब अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी याद है तो उसका उल्टा कर दो। सबसे इजीली कौन सी बॉन्ड टूटती है? CH3I। और सबसे मुश्किल से कौन सी टूटती है? CH3F। दैट मीन्स C इज माई आंसर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड एंथैल्पी उसी की ज्यादा होगी ना जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं जाऊंगा आंसर नंबर C के साथ। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? हमारे पास होते हैं स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, फुली एक्लिप्स्ड, स्क्यू। तो जो आपका फुली एक्लिप्स्ड होता है वो एक के पीछे एक आ जाता है। दैट मीन्स 0 इज माई आंसर। उनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो होता है 0 डिग्री। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। देखा, हमारा आंसर जो है वो एकदम सही आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 22 है। हाँ, 22। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। फाइन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ट्रू है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते, ऑलरेडी स्टेबल हैं। नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ट्रू है। नोबल गैसेस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि इनमें कोहेसिव फोर्सेस कम होती है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी ट्रू है, मतलब यही फॉल्स है। दैट मींस सी ही हमारा आंसर है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सारी की सारी गैसेस हैं भाई। अब किसी गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज इट हाई और लो, यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। तो लॉजिकल भी सोचो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लाओ, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं तो सी के साथ जा रहा हूं, आप लोग बता देना क्या है। आई विल गो विद सी। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd question. What is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reaction? Acetone, C2H5, MgBr, dry ether. अगर आपको याद हो, इन द 2020 नीट पेपर ऐसा ही क्वेश्चन एक और था जिसमें CH3 MgCl हमने रिएक्ट किया था। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। तो वहां पे हमारे पास जो चीज बनी थी, यहां से बनी थी COH, वो था टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहां पे हमने CH3 को किससे रिप्लेस कर दिया? C2H5। ओके, मतलब इसका प्रोडक्ट अब ये बनेगा। दैट मीन्स अब इसका नामकरण करना है। नामकरण कैसे करेंगे? 1 2 3 4, मतलब ये ब्यूटेनओल है, ब्यूटेन-2-ओल है, ब्यूटेनोल है। चेक कर लेते हैं, अगर ब्यूटेनोल के और ऑप्शन है तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर ब्यूटेनोल तो है ही।
हाँ देखो, अब ये स्मार्ट वर्क है, ब्यूटेन 2 है, खत्म। प्रोपेनोल है, पेंटेनोल है, पेंटेन तो बनेगा नहीं, क्योंकि एसीटोन जो है वो आपका टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ग्रिग्नेट रिएजेंट के बाद। तो डेफिनेटली ए ही मेरा जो है वो सही आंसर है। यस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे हिसाब से। फॉर ए रिएक्शन A to B एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 वोल्ट। सही है। करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द डायग्राम। अब इसमें A आपका रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है। अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी ऑफ B शुड बी लेस देन एनर्जी ऑफ A, दैट मींस B इज स्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी B की कम होनी चाहिए। यहाँ पे B की एनर्जी यहां आ रही है, A की यहां आ रही है, ये मेरा आंसर नहीं है। मूविंग टू द सेकंड ऑप्शन। हाँ, ये लग रहा है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल है, C में इक्वल है, D, हाँ मेरा B आंसर है, क्योंकि बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक तो A ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल है, B ज्यादा स्टेबल है। तो D नहीं है, C नहीं है। यस, देखो बच्चों, बी मेरा राइट आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता था। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आई गेस। सो दिस इज द रिएक्शन, ओके, CH3CH3, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। करना पता नहीं क्या है इसमें, देखते हैं। ये डीकार्बोक्सिलेशन है। कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। मिसिंग रिएजेंट, डीकार्बोक्सिलेशन का मिसिंग रिएजेंट क्या होता है? NaOH प्लस काउ CaO। अब देख लेते हैं कि वो ऑप्शंस में है कि नहीं है। डाई बार H ब्यूटेसिक रेड, हाँ ऑप्शन डी पड़ा हुआ, देखो ध्यान से। तो भाई कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, आप लोग खुद बताओ मुझे। देखा, राइट आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऊपर गया, लास्ट हमने किया था, हाँ काउ वाला किया था। ओके, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution at 45 डिग्री सेल्सियस with benzene to octane in molar ratio 3:2। ओके, आपको निकालना है the correct option for the vapor pressure of a solution। solution का vapor pressure, that means हमें निकालना है PT। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। Let us solve it। स्मार्ट बोर्ड में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या गिवन है, 3 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन क्या गिवन है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब मेरा जीटा बेंजीन का कितना हो जाएगा, 3/5, और मेरा जीटा ऑक्टेन का कितना हो जाएगा, 2/5। अब मुझे पता है कि जो मेरा पीटी है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी। पार्शियल प्रेशर दोनों के गिवन है, पार्शियल प्रेशर दोनों के गिवन है। पी नॉट ए जो है वो है 280 और पी नॉट बी जो है वो है 350। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 280 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 350। थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, 168 प्लस 168, तो ये बनेगा 336 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था यार, कुछ भी मुश्किल नहीं था, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता। 336 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 350, 160, 168, 36, हाँ ऑप्शन नंबर डी ही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। देखा, ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। ओके, सो आराम से आप जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इतना भाग क्यों रही है स्क्रीन आज। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो चलिए लेट अस मैच द लिस्ट। अब अगर नेमिंग रिएक्शन के 50 to 60 नेमिंग रिएक्शंस हैं, मैंने अपने बच्चों को दिए थे, आप लोग भी याद कीजिएगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन का रिएजेंट है, जहां पे हमारे पास बनता है बेंजाल्डिहाइड। तो ए का 2 है, वही ट्रिक यूज कर लो, एक बारी मैच कर लो एक को, कई बारी सिंगल मैच से ही आंसर मिल जाता है।
ए का 2, ए का 2 है, ए का 4 है, ए का 3 है, ए का 1 है। देखा, अभी मैं आपको बोल के रहा हटा, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि डू नॉट गो फॉर ऑल रिएक्शन, जस्ट चेक 1, A2 डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, डेफिनेटली ये मेरा राइट होगा। So this is kids how we can get the answers directly. Only naming reaction you should have learned. Moving to the next question, the intermediate compound X in the following chemical reaction is, यही होता है यार, ऑप्शन ए है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। CH3 है ना, तो इसमें क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, तो इसके 2 मोल्स जो हैं वो बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ ही मैं जाऊंगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये चीज, तो चेक कर लेते हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट ऑप्शन। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ट्रिक से भी देखूं तो देखो, अगर मुझे याद नहीं है कि क्या बनेगा, यहाँ पे Cl है, आपका क्रोमाइल क्लोराइड में Cl2 आएगा, यहाँ पे Cl2 है, ओके। क्या सेकंड वाले में Cl2 है? नहीं है, CH3 है। क्या थर्ड वाले में है? यहाँ पे CHCl है, लेकिन क्रोमाइल कहाँ गया? यहाँ पे भी नहीं है। तो आप ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा राइट आंसर मिलता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 29th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ओके, रिडक्शन हो रही है सोडियम बोरोहाइड्रेट। इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी आया था, इफ यू रिमेंबर। पता नहीं जेई में आया, पता नहीं 2020 में आया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डू नॉट रिड्यूस एस्टर, ये एस्टर है आपका, इसकी रिडक्शन नहीं होगी। इसकी रिडक्शन होगी तो या तो ये एल्कोहल बनेगा और इट विल बिकम हाइड्रोकार्बन। अब कहीं कहीं इसको एल्कोहल बनाते हैं, कहीं इसको हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस में क्या गिवन है। चेक कर लेते हैं, मतलब सिर्फ कीटोन की ही हो रही है, ओके। ऑप्शन ए में देखोगे तो यहाँ पे OH आ गया, ये तो सही है। यहाँ OH आ गया, ये गलत है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में इन्होंने क्या कर दिया, ध्यान से देखोगे, ये कीटोन एज इट इज छोड़ दिया, गलत है। रिडक्शन तो होगी कीटोन की, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को तो रिड्यूस करता है। ऑप्शन सी में अगर देखें तो वहां भी सेम किया हुआ है, मतलब ऑप्शन डी ही होगा। हाँ देखो, सब में अल्कोहल है, मैंने आपको अभी बोला, या तो अल्कोहल या फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कोहल या फिर हाइड्रोकार्बन। तो ये एस्टर का एस्टर है, मतलब डी मेरा राइट आंसर है। तो आई विल गो विद आंसर नंबर 4। चेक कर लेते हैं अभी लाइव। हाँ, दिस इज माय राइट आंसर। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट Kv वर्सेज 1/d ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच। द वैल्यू ऑफ Ea आर गिवन है, ओके, वैल्यू फाइंड करनी है स्लोप से। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को बहुत करवाए थे क्लास में, 4-5 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाए थे। बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो जेई का क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि बच्चों नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। तो आइए आज सॉल्व करते हैं लाइव। सो वी हैव गॉट k is equal to a e raised to power ea upon rt, ln k is equal to ln a minus ea upon r into 1 upon t। तो ये बन गया y is equal to c minus mx। तो अब यहां से अगर आप कंपेयर करो तो m इज इक्वल टू ea अपॉन r, राइट, और इसकी वैल्यू है -5 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग है कुछ, कहां गया, 3 है, ओके, सॉरी स्मार्ट बोर्ड, -5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 है। तो बस हो गया काम। सो माइनस ये इज इक्वल टू -5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 8.314। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 5 40, तो 41 42 43 के आसपास कुछ होना चाहिए। 45.1.5 गिवन है भाई, 8 5 40, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ये भी हमारा आंसर जो है वो राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal, isothermal का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा U is 0, the correct option are डेल्टा U 0 है, मतलब ये खत्म हो गया और C खत्म हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, एक्सपेंशन हो रही है, दैट मीन्स एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, D है।
तो आप ऐसे ही आप इनको चेक कर सकते हो। दिमाग में आपके स्ट्राइक होना चाहिए कि दिया हुआ क्या है और मुझे सॉल्व क्या करना है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ देखो एकदम से सही आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 32, from the following pair of ions which are not isoelectronic, not isoelectronic means which do not have same number of electrons, Fe2Mn2। अब आप लॉजिकली बताओ कि क्या नेबरिंग एटम्स का सेम चार्ज हो सकता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए? यही मेरा आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चेक कर लो, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, Mn2 Fe3। देखो अब A और D को चेक करो, यहां पे चार्ज डिफरेंट है, ट्रिक की बात कर रहा हूं, चार्ज डिफरेंट है दैट मीन्स हो सकते हैं, यहां पे चार्ज सेम है कभी नहीं होंगे। अगर मैं बोल दूं कि O नेगेटिव F नेगेटिव दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, कभी हो ही नहीं सकते। तो वो ट्रिक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। सेम चार्जेस नेबरिंग एटम्स आर नेवर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ही मिलेंगे सब। तो ये आंसर भी हमारा राइट आंसर है। Moving to the next question. ओके ये तो एक्सप्लेनेशन है। 32 हो गए हैं, 33 की तरफ बढ़ते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20। ओके हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है भाई? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड हमारे पास होता है Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, राइट। अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाँ C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, तो Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर। अब गिवन क्या क्या है मेरे पास? मोलर कंडक्टिविटी है इतनी और ये इतनी है, बस हो गया सॉल्व, हो गया। अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट। तो ये मेरे पास बन जाएगा HNCl3 350 प्लस 50 40, तो ये मेरे पास बन जाएगा 20 अपॉन 400, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। अब इस अल्फा को पुट कर दो यहां, तो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 7 इंटू 10⁻³ इंटू 1/20 इंटू 1/20। मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं, तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है सॉल्व होके वो है 1.75 इंटू समथिंग समथिंग। ओके 10⁻³ वी हैव टू सॉल्व, तो 1 2 1 2 3 to 5, so it will become 5। ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। 4 नहीं आएगा। देखो 2 0 यहां से आएंगे, 2 डेसिमल यहां से शिफ्ट होंगे, 3 ऑलरेडी हैं, तो 3 और 2 5। तो जो मेरा इसमें सही आंसर है वो आंसर डी है, आंसर डी ही होना चाहिए। हाँ देखा, ये this is the right answer once again। So moving to the next question, which of the following molecule is non-planar in nature? किसको नहीं पता है non-planar? तो NO2 is non-polar, sorry, do not मेरी तरह गलती मत खा जाना, non-polar है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर, ये डी आएगा SbCl5, ऐसे होता है SbCl5, SbCl Cl 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 Cl, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नपस्बी ग्रुप नंबर 15, तो 5 बॉन्ड पेयर हैं, ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑल सब्सिडियरी एटम सेम, दैट इज नॉन पोलर। प्लेनर नहीं है, पोलर है, तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो डी इज माय राइट आंसर, आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, we have got this answer, right answer. So moving to the next question, list A and list B. So FeCN6 3 नेगेटिव, इनका बोहर मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। FeCN6 3 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि Fe+3, दैट मीन्स मेरे पास आएंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, सो मैं क्या करूंगा, मैं इनको पेयर अप कर देता हूं, 1 2 3 4 5, तो मतलब इसका हो गया 1.75। मैं अपनी ट्रिक से काम करूंगा। देन A is 4, A4 मुझे मिल गया, या तो यहां है या फिर यहां है। अगर A4 है तो D3 है, A4 है तो D3 है, मतलब मुझे चेक करना है C और B। मैं C चेक कर लेता हूं क्योंकि FeCN6 है, CN6 का मतलब यहां पे भी हो गया पेयरिंग, तो FeCN6 का हो गया 0, मतलब C2 है। ये पड़ा हुआ है मेरा आंसर। तो बच्चों बात वही है कि आपको पिक करना है, आपको कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्व नहीं करना है। सारे के सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट है, मैं आपको 200% श्योर हूं।
ऑप्शन नंबर ए शुड बी माई राइट आंसर। देखो मैंने दो ही सॉल्व किए और दो सॉल्व करके मेरा आंसर जो है वो सही आ गया एकदम, मेमोरी बेस्ड नहीं है। In which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it? Okay, increasing oxidizing का order ये तो सही है। HF, HCl, HBr, HI increasing acidic strength सही है। H2O, H2S, H2SE, H2T increasing pKa values। oh, pKa values गलत है भाई, pKa नहीं होता, ये Ka values होती हैं। Ka is equal inversely proportional to pK, उल्टा होता है। तो यहाँ पे decreasing pKa आना चाहिए था और increasing Ka आना चाहिए था, मतलब C ही मेरा आंसर है। मैं जाऊंगा सी के साथ। सो दिस इज माई आंसर। सो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज अगेन अ राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 हो गए हैं, 9 बचे हैं और E and G। ओके, फिजिक्स इज स्टार्टेड। ओके, दैट मीन्स केमिस्ट्री इज ओनली 36 क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड। सो बच्चों ये थे अपने क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का 36 ही थे इसमें। सो देखो आपके सामने है जो हमने आंसर निकाले, बड़े आसानी से ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने निकाले। अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी है तो 36 में से आपके 32 क्वेश्चन बड़े आराम से बनने वाले थे, 2-3 न्यूमेरिकल थे। तो 32 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाना नीट में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, आपका स्कोर जो है वो 650 प्लस चला जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो नीट 2022 के 2 फेज हुए थे, फेज 1 फेज 2, तो एक एक करके वीडियो बनाएंगे। पहले फेज 1 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच किड्स, ऑल द बेस्ट।